Fatehgad, welcome you all, dear delegates, paper presenters, Honorable Principal Sir, all the resource persons, members of the organizing committee, and my dear viewers. Manohar family welcomes you all in this DHE sponsored online national seminar on digitalization and COVID 19. It's a matter of honor for us that this is the fourth seminar in the series of seminars in collaboration with Department of Higher Education, Haryana. It is organized by the Department of Computer Science and the IQAC cell of MM College, Fatehgad. We have with us our Honorable Chief Guest, Professor Dr. Vikram Singh, Department of Computer Science and Engineering, CDLU Sirsa. Our keynote speakers are Dr. Ritu Bajaj, Department of Management, BPS India Vishwavidyalaya, Kanpur Kala. Our resource persons of today's session are Professor Dr. Vishnu Bhagwan, Chairperson, Department of Public Administration, CDLU Sirsa for the first technical session. And we have with us Dr. Aarti Gaur, Chairperson, Department of Business Administration, CDLU Sirsa for the second technical session. And our chairpersons are Professor Mrs. Pratibha Makhija, Associate Professor of English for the first technical session, and Professor Mahesh Mehta, Head Department of English for the second technical session. The convener of the seminar are Honorable Principal Sir Dr. Gurucharan Das Ji, and the organizing secretaries are Dr. Vikesh Sethi, Department of Computer Science, and Dr. Vijay Goyal, Head Department of Mathematics and Coordinator IQAC. I feel privileged to welcome you all. As we all know, COVID-19 has evolved to be a kind of catalyst for the adoption and increasing use of digitalization in work organization and the office, alongside presenting foreseen and unforeseen opportunities, challenges, and costs, leading to negative and positive feedback loops, as we'll further explore in today's session. Now, I would like to invite Dr. Vikesh Sethi, Department of Computer Science, of the program to come and formally introduce our chief guest with the viewers. Sir. धन्यवाद हिमांशी मैम। आज का हमारा टॉपिक डिजिटलाइजेशन एंड कोविड-19 है। डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम हमारी डे टू डे लाइफ जो है बेसिकली उसमें हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। कोविड-19 का पीरियड जो फर्स्ट फेज था, सेकंड फेज था, वो हमने बड़े अच्छे से उसको महसूस भी किया है। बहुत सारी ट्रेजेडीज भी हुई और इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज सब बंद रहे और इस डिजिटलाइजेशन ने बेसिकली जो हमारा आईटी सेक्टर है उसने इसमें बहुत अहम भूमिका जो है वो निभाई है कि काफी हद तक जो है वो हमारा सिस्टम चल सका। अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं या कॉलेजेस की बात करते हैं, हमारी ऑनलाइन एजुकेशन चली। बहुत से हमारे टीचर्स स्कूल कैडर में भी या कॉलेज कैडर में भी जिन्होंने नहीं पीपीटी यूज की थी, इस दौरान उन्होंने इस कंसेप्ट को देखा भी, सुना भी, काम भी किया उस पे और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और यही ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, बाकी अदर सेक्टर्स में भी कंपनीज ने भी अलाउ किया वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि डिजिटलाइजेशन था, ये कंसेप्ट हमारे पास था तो वो पॉसिबल हो सका। अदरवाइज बहुत कुछ ठप हो जाता। हालांकि काफी कुछ ठप था कोविड के दौरान, लेकिन डिजिटलाइजेशन की वजह से काफी कुछ हम सुचारू रूप से चला सकते। आज का जो हमारा सेमिनार है बेसिकली ये टॉपिक जो है वो ऑफलाइन करने वाला था, ताकि हम लोग बहुत कुछ ऑफलाइन जब सेमिनार होता है तो उसमें काफी कुछ इंटरेक्शन हो जाती है। कुछ कमियां जरूर हैं इस ऑनलाइन प्रोसेस की वजह से, लेकिन क्योंकि परमिशन तब कोविड के दौरान मिली थी तो ये ऑनलाइन सेमिनार के लिए परमिशन मिली हुई थी, ऑफलाइन के लिए नहीं था, तो हमें इस सेमिनार को ऑफलाइन नहीं चला सके, ऑनलाइन ही चलाना पड़ रहा है। तो इस सेमिनार के अंदर जितने भी हमारे डेलीगेट्स हैं, रिसोर्स पर्सन्स हैं, उनसे हमें काफी कुछ सीखने को मौका मिलेगा। आज भी हम इस दौरान जो आगे का भी है जो पीरियड पोस्ट कोविड की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी जो पहले की कमियां रही डिजिटलाइजेशन में या कुछ और नए कंसेप्ट्स हमारे निकल कर सामने आए, तो उनको हम आगे कैसे यूज करेंगे, कैसे हम उस पर वर्किंग करेंगे,
तो ना ज़्यादा समय लेता हुआ मैं मैडम हिमांशी से कहूँगा कि हम इस जो हमारा इनॉग्रल सेशन है प्रिंसिपल सर के साथ और हमारे रिसोर्स पर्सन्स प्रोफेसर विक्रम सिंह और डॉक्टर रितु बजाज के साथ हम हमारे इनॉग्रल सेशन को स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your views. Now, not taking much time, I would like to invite Honorable Principal Dr. Gurcharan Das ji to come and share his views with the audience. Sir. धन्यवाद मैडम हिमांशी, धन्यवाद डॉक्टर विकेश सेठी। मैं मनोहर मेमोरियल कॉलेज की तरफ से आज के इस एक दिवसीय ऑनलाइन नेशनल सेमिनार जो कि डायरेक्टोरेट हायर एजुकेशन पंचकुला द्वारा स्पॉन्सर्ड है, डिजिटलाइजेशन एंड कोविड-19 में सभी महानुभावों का, सभी वक्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो ये सेमिनार का विषय डिजिटलाइजेशन एंड कोविड-19 चुना गया, इसमें हम ये महसूस करेंगे अगर कोविड के दौरान डिजिटलाइजेशन ना होता तो सच में ही हमारा भारत देश या विश्व एक ब्लैक आउट की तरह महसूस करता। कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देना जैसा होगा अगर ये डिजिटलाइजेशन के साथ कोविड को ना जोड़ा जाता। मैं आज के इस फंक्शन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के जब भी कोई बात आती है तो डॉक्टर विक्रम सिंह जी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से किसी ना किसी रूप में जरूर जुड़े रहते हैं। उन्होंने विभिन्न पदों पे काम किया है, डीन एकेडमिक अफेयर्स की बात हो, डीन ऑफ कॉलेज की बात हो, डीन फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंस की बात हो, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग की बात हो, प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स काउंसिल की बात हो, तो सर किसी ना किसी रूप में विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और मनोहर मेमोरियल कॉलेज की सदैव उन्नति और तरक्की में प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सिंह जी का योगदान रहता है और हमारे एक मेंटर के रूप में भी ये कार्य करते हैं। मुख्य अतिथि महोदय, मैं आपका मैनेजमेंट की तरफ से, स्टाफ सदस्यों की तरफ से और सभी विद्यार्थियों की तरफ से मनोहर मेमोरियल कॉलेज के इस सेमिनार में जुड़ने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं आज के कीनोट स्पीकर डॉक्टर रितु बजाज, जो कि पूर्व में रजिस्ट्रार रहे स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर में, और अब ये प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत व्यक्त करता हूं प्रोफेसर विष्णु भगवान जी का और प्रोफेसर डॉक्टर आरती गौड़ का, जो आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें सुझाव देंगे और हमें बताएंगे कि किस तरह से डिजिटलाइजेशन और कोविड का आपस में इंटरेक्शन हुई और आज हम इस महामारी से कुछ ना कुछ हद तक अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़े रखने में सफल हुए। मैं बधाई देता हूं आज के इस आयोजन के सेक्रेटरी डॉक्टर विजय गोयल और विकेश सेठी को कि इन्होंने इस मुकाम तक इस सेमिनार को लेके आए, चाहे वो परमिशन डायरेक्टोरेट हायर एजुकेशन पंचकुला से लेने की बात हो, चाहे पार्टिसिपेंट्स को जोड़ने की बात हो, चाहे पेपर प्रेजेंटर को जोड़ने की बात हो, चाहे मुख्य अतिथियों से समय लेने की बात हो। इन्होंने अपनी इस कार्यशैली को बखूबी निभाया। निश्चित रूप से ये मनोहर मेमोरियल कॉलेज के लिए गर्व की बात है। अंत में अधिक समय न लेता हुआ एक बार फिर मैं धन्यवाद भी करता हूं डायरेक्टोरेट हायर एजुकेशन पंचकुला का, जिन्होंने हमारे महाविद्यालय को ये डिजिटलाइजेशन एंड कोविड-19 का ऑनलाइन सेमिनार कराने की अनुमति दी। एक बार फिर सभी का स्वागत, और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से ये जो सेमिनार है हमारे ज्ञान के क्षेत्र में वर्धक साबित होगा और हमें महसूस कराएगा कि डिजिटलाइजेशन का इस महामारी से उबरने में
कितना अहम योगदान रहा और किस तरह से हम नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को अवगत करा पाए, अपने आप को अपडेट कर सके। एक बार फिर सभी जुड़े हुए महानुभावों का मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं कि बहुत दूर दूर से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सुशील मानव जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये सेमिनार नेशनल लेवल का सेमिनार है। इसमें सभी प्रदेश के जो युवा हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट एज ए यूज किया है वो जुड़े हुए हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for the formal welcome. Now, I would like to give a brief introduction to our chief guest of honor, Professor Dr. Vikram Singh, Department of Computer Science and Engineering, CDLU, Sirsa. He has done his Masters of Science in Physics from Department of Physics, Kurukshetra University, Kurukshetra. He has done Masters of Computer Applications from Kurukshetra University in 1992. He is a doctorate in philosophy in computer science from Kurukshetra University in 2004. He has a vast teaching experience of more than 22 years. Now let's take a look on his administrative experience. He has been the Dean Academic Affairs, Chaudhry Devilal University, Sirsa, for a full tenure of 2 years from April 2013 to March 2015. Also, he has been the Dean of Colleges, CDLU, Sirsa, for 2 years from July 2017 to August 2019. His list of achievement is very high, so I'll try to give it in a brief. He has been the member of Board of Governors, Haryana State Technical Education Society, Panchkula. He has been the subject expert in PhD Interview Committee, Punjab Technical University, Jalandhar. He has been the subject expert on UGC Committee for review of major research projects. He has been the outside expert in PhD Interview Committee of IGNOU, New Delhi. He has more than 38 conference publications in his account. He has his association with a number of journals. He has also authored a number of books and book chapters. Now it's our honor to have such great personality with us. Now, not taking much time, I would like to invite him to come and share his views with the viewers. Sir. मनोहर मेमोरियल कॉलेज की प्रबंधन समिति के मेंबर सेक्रेटरी और प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर गुरचरण दास जी, श्री सुशील मानव जी, प्रोफेसर रितु बजाज जो कि पहले टेक्निकल सेशन की रिसोर्स पर्सन हैं, डॉक्टर विकेश सेठी और डॉक्टर विजय गोयल, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ दिस इवेंट, और उनकी टीम, कॉलेज के टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, स्टूडेंट्स और डेलीगेट्स। मैं सेठी साहब कुछ निराशा व्यक्त कर रहे थे कि ये ऑफलाइन मोड में नहीं हो पाया। डिजिटलाइजेशन का सेमिनार डिजिटल मोड में भी चलेगा तो कोई निराश होने वाली बात नहीं है। और वो हो रहा है। और मैं कुछ शुरुआत में कुछ डेटा मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और उसके बाद फिर एक प्रेजेंटेशन के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। ये 3 दुनिया के अलग अलग जो खित्ते हैं, जो रीजन्स हैं, उनका कस्टमर इंटरेक्शंस जो डिजिटल मोड में होती हैं उनसे रिलेटेड ये डेटा हैं। जो 3 डिफरेंट रीजन्स हैं वो एशिया पैसिफिक है, जिसमें एशियन कंट्रीज आते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, यूरोप का डेटा है और नॉर्थ अमेरिका का डेटा है जिसमें कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स मुख्यतः आते हैं, और फिर इनका एवरेज निकाल के वर्ल्ड का डेटा है। 4 डिफरेंट टाइम्स का डेटा है। जो लाइट ग्रीन कलर की जो बार है वो जून 2017 का परसेंटेज बताती है कि कस्टमर्स की इंटरेक्शन डिजिटल फॉर्म में 20% के लगभग थी। कस्टमर इंटरेक्शन का मतलब है जब कोई कस्टमर कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले रिसर्च कैरी आउट करता है। क्षमा चाहूंगी विक्रम साहब, प्रोफेसर विक्रम सिंह जी, आगे मूव नहीं कर रही है स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड पे ही भी हम हैं।
अभी डेटा पे नहीं आए, बार डेटा पे नहीं आए। हाँ जी, थैंक यू। ऑर्गेनाइजर्स, आप लोग रिकॉर्डिंग अगर परमिशन ले लें प्रिंसिपल साहब से, रिकॉर्डिंग करना चाहें तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं थोड़े सेशन की, बाद में आपको फ्यूचर में डीएचई में भेजना होगा है ना, ऐसा होगा ना रिक्वायरमेंट, तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लें या फोटो क्लिक, जो भी आपको लगता है वो कर लें तब तक। ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे मैडम, पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं सारा। ओके। अब स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या सेठी साहब? हाँ जी सर, विक्रम सर माइक ऑन करेंगे। जी सेठी साहब, स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ जी सर, दिख रहा है जी। और ये प्रेजेंटेशन विजिबल है सर? हाँ विजिबल है सर। तो मैं ये कह रहा था कि जो डिजिटल फॉर्म में कस्टमर्स इंटरेक्ट करते हैं उनकी परसेंटेज यहाँ पे 4 अलग अलग वक्तों की बता रखी है। जून 2017 का जो डेटा है वो लाइट ग्रीन कलर में है, डार्क ग्रीन कलर में मई 2018 का है, और ब्लू कलर में कोविड से जस्ट पहले का दिसंबर 2019 का डेटा है। कस्टमर इंटरेक्शन का मेरा मतलब है जब कोई कस्टमर इंक्वायरी करता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च करता है, दूसरे जो कस्टमर्स जो पहले के हैं उनकी कस्टमर की फीडबैक क्या है, उससे रिलेटेड वो जब भी कोई रिसर्च करता है वो कस्टमर इंटरेक्शन है। या कोई प्रोडक्ट खरीदने के बाद वो कस्टमर केयर से बात करता है, वो भी कस्टमर इंटरेक्शन है। रेड कलर वाला जो बार है वो जुलाई 2020 का है, जब कोविड अपने आई बेग यू पार्डन, जब मैं टर्म यूज करना चाहता हूं, जब कोविड ब्लूम पे था। पहले एक्चुअली मांग लिया मैंने ब्लूम वर्ड यूज करने के लिए। तो जुलाई 2020 में वर्ल्ड ओवर लगभग 58% डिजिटल फॉर्म में कस्टमर इंटरेक्शन हो रही थी, और उससे जस्ट पहले कोविड से वर्ल्ड ओवर ये जो परसेंटेज थी ये 36 थी। देयर इज अ जंप ऑफ ऑलमोस्ट 22% विद इन फ्यू मंथ्स। ये एशिया पैसिफिक का डेटा है, यूरोप का डेटा है, और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का डेटा भी है। ये सेकंड स्लाइड आप लोगों को प्रोग्रेस हुई है। सेकंड स्लाइड, डिजिटल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सेठी साहब नेक्स्ट स्लाइड विजिबल है? सर फर्स्ट अभी आपकी वही स्लाइड चल रही है, डिजिटल कस्टमर। हाँ ये बाकी सर, डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। चलिए, इसका भी यही 3 डिफरेंट रीजन्स और वर्ल्ड की एवरेज का डेटा है।
ये है डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विसेज, फॉर एग्जांपल बुक्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, ऑनलाइन मूक कोर्सेज, डेटाबेसेस, म्यूजिक, वीडियो, सॉफ्टवेयर, फोटोग्राफी, मोबाइल एप्स, प्रेजेंटेशंस, या फिर हम कोई पॉलिसी खरीदते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, व्हीकल इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, या कोई डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, चाहे वो किसी शेयर का हो, स्टॉक का हो, या हमारी डिग्रीज हैं डिजिटल फॉर्मेट में, ये सारे डिजिटल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं। ये कोविड की वजह से इनमें जो जंप आया है, परसेंटेज वाइज जंप, वर्ल्ड ओवर कोविड से जस्ट पहले डिजिटल सर्विसेज का शेयर था 35%, और जुलाई 2020 में जब कोविड पूरे शबाब पे था तो ये सर्विसेज का शेयर हो गया 55%. देयर वाज अ डायरेक्ट एंड वेरी स्टीप जंप ऑफ ऑलमोस्ट 20% ड्यू टू कोविड. ये डिजिटलाइजेशन को दिखा रहा है कि हाँ, कोविड की वजह से डिजिटलाइजेशन में जंप हुआ है, और डिजिटलाइजेशन हैज बीन कंसिडर्ड एज अ सेवियर ऑफ द लाइव्स, ह्यूमन लाइफ ड्यूरिंग कोविड. नेक्स्ट स्लाइड विजिबल है. यस सर, विजिबल हो रही है. इसमें वर्क फ्रॉम होम का डेटा है. जिस लेवल पे कोविड की वजह से सिर्फ 10.5 दिन में वर्क फ्रॉम होम पहुंच गया, जिस लेवल पे विदाउट कोविड वर्क फ्रॉम होम का वो लेवल 454 दिन में एक्सपेक्टेड था. ये रिसर्च है मैकिंजी ग्लोबल की रिसर्च है. ये जो मैं डेटा कोट कर रहा हूँ तीनों स्लाइड्स में मैकिंजी ग्लोबल का है. ये 43 गुना एक्सेलरेशन हुआ है इन अडॉप्शन ऑफ वर्क फ्रॉम होम सर्विसेज. ऑनलाइन प्रोडक्ट्स और गुड्स का जो एक्सेलरेशन हुआ है कोविड की वजह से वो 27 गुना है. जो एडॉप्शन ऑनलाइन गुड्स और सर्विसेज का 585 दिनों में होना था नॉर्मली विदाउट कोविड, वो लगभग 22 दिन में हो गया. और एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज बिजनेस के ऑपरेशंस में और बिजनेस के डिसीजंस में जो लगभग 650 दिन में होना था, वो लगभग 25-26 दिन में हो गया. 25 गुना एक्सेलरेट हुआ है एडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज इन बिजनेस ऑपरेशंस एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग. और जो डिजिटल एसेट्स हैं, डिजिटल फॉर्मेट के जो एसेट्स हैं, उनको क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज पे शिफ्ट करने का जो काम है, जो नॉर्मली 547 दिन में होना था, वो 23 दिन में हो गया है. An acceleration of 24 has been observed in migration of digital assets to cloud services. तो डिजिटलाइजेशन के जो एक्सेलरेशन रहे, जो फैक्टर्स रहे, जो उत्प्रेरक हैं, वो मैंने अपने हिसाब से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं. रिमोट वर्किंग डिजिटलाइजेशन के एडॉप्शन का एक कारण रहा, और दूसरा है जो कि काफी पुराना कारण कोट किया जाता रहा है, पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना या पेपरलेस ऑफिस बनाना. आज का जो टॉपिक है, आज के मौजू के हिसाब से रिमोट वर्किंग इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. रिमोट वर्किंग के डिजिटलाइजेशन ने अलाउ किया, फैसिलिटेट किया, क्योंकि दुनिया के काम तो चलने ही थे, और ये बड़ी अजीब सी बीमारी थी, वायरस था, कि हम एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ सकते थे, तो ट्रैवल नहीं कर सकते थे. ट्रैवल करने के लिए भी नज़दीक आना पड़ता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो खास तौर पे. तो घर बैठे ही काम करना, ये एक किस्म का एक, ये कहिए कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने एक वरदान के रूप में डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे लिए साबित हुई. डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से हम रिमोट वर्किंग कर पाए, और रिमोट वर्किंग की खासियत ये है कि इंडिया में बैठा हुआ व्यक्ति भी
एक अमेरिकन कंपनी को सर्विस दे सकता था। देयर वाज नो बैरियर ऑफ बॉर्डर्स। कहीं पे भी आप बैठे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं पे भी रिमोटली आप काम कर सकते हैं। काम के लिए आपको घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, समय की बचत होती है, जो कम्यूटिंग में जो टाइम लगता है और जो कम्यूटेशन की वजह से जो हमें यात्रा करनी पड़ती है उसकी वजह से जो हमें फटीग होती है, थकावट होती है, वो नहीं होती है। और जो पेट्रोल और हाइड्रोकार्बन्स बर्न करते हैं हम या बिजली यूज करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसकी बचत होती है। तो रिमोट वर्किंग कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ऑपरेशनल कॉस्ट रिमोट वर्किंग की वजह से बढ़ जाती है क्योंकि ऑफिस स्पेस की जरूरत कम हो जाती है किसी भी कंपनी के लिए जो वर्क फ्रॉम होम अलाउ करती है। और जो बिजनेस ट्रैवल्स हैं वो घट जाती हैं क्योंकि फिर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग्स करते हैं। जहाज में बैठ के इधर उधर या कार में बैठ के इधर उधर हम ट्रैवल नहीं करते। हमसे मतलब है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। सेकंड नेक्स्ट एस्पेक्ट है कि इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ रिमोट वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इस दौरान ये हो रहा है कि डिजिटल सर्विसेज बढ़ रही हैं, तो रिमोट वर्किंग को फैसिलिटेट करने के लिए डिजिटल सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है और डिजिटल सर्विसेज की वजह से रिमोट वर्किंग यानी कि वर्क फ्रॉम होम एक रियलिटी है जो कि पहले कुछ साल पहले तक इतनी रियलिस्टिक नहीं लगती थी। और इन सब की वजह से क्योंकि हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ता तो रिड्यूस्ड कार्बन फुटप्रिंट है। इसका मतलब ये है कि हम एनवायरनमेंट को बचा पाते हैं। और आप लोगों ने कई सारे न्यूज आइटम भी देखे होंगे कि जलंधर से धौलाधार रेंज जो कि धर्मशाला के ऊपर है वो साफ दिखाई दे रही थी उन दिनों में जब हम लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे। और कार्बन और उससे रिलेटेड जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका एमिशन मिनिमल था। तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से हम एनवायरनमेंट को भी हमारे इकोलॉजी को भी सेव कर सकते हैं। रिमोट वर्किंग का नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये स्लाइड विजिबल है आप लोगों को? रिमोट वर्किंग का नकारात्मक पक्ष इसका टाइटल है। यस सर। थैंक यू। क्योंकि ह्यूमैनिटी इस तरीके से इवॉल्व नहीं हुई है कि हम दूर दूर बैठ के या रिमोटली बैठ के बातें करें। हम इकट्ठे बैठ के जिसको बातें फोड़ना कहते हैं उस तरीके से ह्यूमैनिटी इवॉल्व हुई है। लगभग 10,000 साल या 12,000 साल पहले तो हम हंटर गैदरर्स होते थे, हंटिंग करते थे, खाना खाते थे और दोपहर बाद बैठ के बातें फोड़ते थे, सारी फैमिली या सारा कबीला बैठ के। वो उस चीज की एब्सेंस है जो कि हम नॉन ह्यूमन कह सकते हैं। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि हम दूर दूर बैठे हैं, वो फील इन टच नहीं आ पाता। और क्योंकि साइबर सर्विसेज का यूज होता है और साइबर सर्विसेज में हर इंटरेक्शन अपना एक फुटप्रिंट छोड़ के जाती है, तो जो बिग ब्रदर उसके लिए हमें सर्वाइव करना बड़ा आसान हो जाता है। हमारी जासूसी करना, हमारी मतलब जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जो साइबर टूल्स को यूज करते हैं, उनकी जासूसी सरकारों के लिए या जो भी करना चाहे उनके लिए बड़ी आसान हो जाती है। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है और बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। आज के दिन जब हम एक नए टूल की बात कर रहे हैं जो कि NSSO ने बनाया है, इजरायली कंपनी ने, पेगासस, उसके कंटेक्स्ट में देखें तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू हो जाता है कि साइबर सर्विलेंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं रिमोट वर्किंग की वजह से। हम एक ही कुर्सी पे बैठे बैठे सारा काम कर रहे हैं। हेल्थ हैजर्ड्स तो हैं, कंप्यूटर के यूज के हैं, नो डाउट, ये सभी को पता है हमें। और विमेन के लिए खास तौर पे, क्योंकि उनको घर भी देखना है और उनका ऑफिस भी जब घर में आ जाता है तो उनके लिए तो लेजरली टाइम खत्म ही हो जाता है। फिजिकल घर से बाहर निकलना जो कि सोसाइटी उनको कुछ कुछ अलाउ कर रही थी वो फिर से बंद हो जाता है वर्क फ्रॉम होम की वजह से। ये कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, डिबेटेबल इश्यूज हैं। मेरा अपना कोई इसमें पॉइंट नहीं है, हम सभी मिलकर कुछ डिबेट कर भी सकते हैं।
पेपरलेस ऑफिस को इस वक्त मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये पुराना कंसेप्ट है पेपरलेस ऑफिस का। आज के कंटेक्स्ट में इसका कोई खास महत्व नहीं है। डिजिटलाइजेशन में बाधाएं क्या क्या हैं, हम बाधाएं की बात कर लेते हैं। डिजिटलाइजेशन हैज बीन प्रूव्ड एज ए बोन इन द टाइम ऑफ कोविड, लेकिन इसके प्रचार में प्रसार में क्या बाधाएं हैं, खासतौर पे हमारे देश में और दुनिया के इस हिस्से में। इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हैं, जैसे कि हम पुराने कानून हैं जिसमें कि कोई भी कलर की कह देता है कि नहीं मुझे तो ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म में चाहिए, मुझे तो कागज ही चाहिए, मैं ईमेल एक्सेप्ट नहीं करूंगा वगैरह वगैरह। जबकि भारत में लगभग 20-22 साल से इसका कानून बना हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो कि ईमेल और दूसरे डिजिटल कम्युनिकेशन को पूरा लीगल स्टेटस देता है। बावजूद इसके, क्योंकि तीसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ इनर्शिया, क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते तो हम बदलते नहीं, हम नई चीज को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, पुरानी में ही हम फंसे रहना चाहते हैं। इस वजह से हम डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट करने से बचना चाहते हैं या बचते हैं। ये ह्यूमन नेचर भी है कहीं ना कहीं। और जो रेड कलर में मैंने पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है, डिजिटलाइजेशन की सबसे बड़ी बाधा है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। डिजिटल डिवाइड की ये डेफिनेशन है, डिजिटल हैव्स और डिजिटल हैव नोट्स के बीच की खाई जो है। डिजिटल हैव्स मींस जिनके पास डिजिटल मींस हैं, जैसे कि स्मार्टफोन है, उनके स्मार्टफोन में इंटरनेट पैक भी है, उनके पास टैबलेट्स भी हैं। दूसरा जो इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसको ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलते हैं, जिसमें कि हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, वो हैं। लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, वो डिजिटल हैव्स हैं। और जिनके पास ये संसाधन नहीं है, गरीब गुरुबा जिसको हम कह सकते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है या इंटरनेट पैक्स नहीं है फोन्स के अंदर, या फैमिली में कुल मिला के एक ही डिवाइस है ऐसी, हर इंडिविजुअल के पास नहीं है, उनको हम डिजिटल हैव नोट कह सकते हैं। इनके बीच की जो खाई है उसको डिजिटल डिवाइड का नाम दिया है। और ये जो खाई है भारतवर्ष में खास तौर पे ज्यादा चौड़ी खाई है। डिजिटल डिवाइड डिफरेंट इसके एस्पेक्ट क्या क्या हैं, जैसे कि कंप्यूटर की उपलब्धता को हम देखें, ग्रामीण भारत में सिर्फ 4.4% लोगों के पास कंप्यूटर उपलब्ध है, और यही फिगर शहरी क्षेत्र में 14.4 है। शहरी क्षेत्र में भी कम ही है। और ये डेटा है नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस 2017-18 का ये डेटा है NSSO का। ये स्लाइड्स आगे प्रोग्रेस कर रही हैं सेठ साहब? हाँ जी, कर रही हैं सर, कर रही हैं। ये स्लाइड पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी प्रति 100 व्यक्ति पर 100 इंटरनेट कितने लोगों को अवेलेबल है। ग्रामीण क्षेत्रों में 27 लोगों को अवेलेबल है और शहरी क्षेत्रों में काफी अच्छा है, 104 कनेक्शन है 100 लोगों के पास। यानी कि जो कुछ गिफ्टेड पर्सन्स हैं उनके पास एक से ज्यादा कनेक्शन भी हैं। 104 कनेक्शन का ये मतलब बनता है। ये डेटा भी NSSO के उसी सर्वे से लिया गया है। तो शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी, इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति के पास है। 104 कनेक्शन होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शहरी हर व्यक्ति के पास इंटरनेट कनेक्शन है। ऐसे कि एक व्यक्ति के पास 2-3 कनेक्शन भी हो सकते हैं। डिस्पर्सन, यहाँ पे डिस्पर्सन होता है, स्टैटिस्टिकल डिस्पर्सन इवन नहीं है। बहुत सारे लोग शहरों में भी ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। इंटरनेट की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 25% लोगों के पास है। अभी बता रहा था मैं कि 104 कनेक्शन होने के बावजूद भी 100% शहरी लोगों के पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ 90% शहरी लोगों के पास इंटरनेट अवेलेबल है। इसका मतलब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में ये जो इंटरनेट की पहुंच है, वाइड गैप है। ये कितने का है? 65% का जो गैप है, ये डिजिटल डिवाइड है। 138 करोड़, अब तो 140 के आसपास होंगे। 140 करोड़ लोगों में से 40 करोड़ भारतीयों के पास इंटरनेट
अवेलेबल नहीं है। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का 2020 का सर्वे का डेटा है। ये डिजिटल डिवाइड है, जेंडर बेस्ड डिजिटल डिवाइड है भारत में। महिलाओं के पास, ऐसी महिलाएं जिन्होंने एक बार भी इंटरनेट का प्रयोग किया है, सिर्फ एक बार भी किया है, वो भी गिन ली जाए तो सिर्फ 42.6% महिलाएं हैं ऐसी। पुरुष ऐसे ज्यादा हैं जिन्होंने एक बार भी इंटरनेट का प्रयोग किया हो, वो लगभग 62% हैं। शहरों में ये फिगर्स ग्रामीण इलाके से थोड़ी सी बेहतर है। ग्रामीण महिलाएं सिर्फ 33 या 34% के लगभग हैं ऐसी जिन्होंने एक बार भी इंटरनेट का प्रयोग किया है। ये जियो स्पेशल इंटरनेट एक्सेस सर्वे है 2020 का। और शहरों में लगभग 57% महिलाएं हैं जो ऐसी हैं जिन्होंने एक बार भी इंटरनेट का प्रयोग किया होगा। इसमें मेल ज्यादा हैं ऐसे। लिंग आधारित जो डिजिटल डिवाइड है उसका एक दूसरा आयाम ये है, मोबाइल इंटरनेट उपयोग करने वाली महिलाएं 21% हैं। मोबाइल बेस्ड इंटरनेट प्रयोग करने वाले पुरुष 42% हैं, डबल सीधा। और मोबाइल फोन विदाउट इंटरनेट को उपयोग करने वाली महिलाएं 63% हैं और लगभग 80% पुरुष ऐसे हैं जो मोबाइल फोन को यूज करते हैं। ये जो लिंग आधारित जेंडर बेस्ड जो डिजिटल डिवाइड है, ये दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे वाइड गैप है इंडिया के अंदर। इसका सोर्स है GSMA मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। ये रीजन बेस्ड जो डिस्पैरिटीज हैं उसकी स्लाइड है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच में सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश है। अजीब लग सकता है, शहरी क्षेत्रों में भी हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है। फरवरी के महीने में और फरवरी के महीने में 2022 में ही मुझे हिमाचल में धर्मशाला में जाने का मौका मिला और दिसंबर 2021 में मैं हमीरपुर में गया HPTU में। जब मैं हिमाचल में एंटर करता हूं तो मेरे इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज पे जहाँ की हरियाणा में 4G लिखा आता है, हिमाचल में जाते ही 4G प्लस लिखा आ जाता है। हमें पता है प्लस थोड़ा बहुत फालतू को ही हम बोलते हैं, तो ये अजीब लग सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश इंटरनेट एक्सेस में पूरे देश में सबसे ऊपर है, चाहे शहरी क्षेत्र है चाहे ग्रामीण क्षेत्र है। कंप्यूटर के प्रयोग में केरल सबसे ऊपर है, शहरी क्षेत्रों में कंप्यूटर के प्रयोग में उत्तराखंड ऊपर है और ग्रामीण और शहरी के बीच का सबसे कम अंतर, मतलब लीस्ट डिजिटल डिवाइड, केरला में है। ये आगे की कुछ स्लाइड्स ऐसी हैं जो थोड़ी सी फिलोसॉफिकल हैं, वो मैं अवॉइड करना चाहूंगा और मैं लगभग इसी के साथ अपनी संबोधन को मैं विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद सर, आपने तो बड़ा सरल तरीके से ये हमें समझाने की कोशिश की कि हर आदमी के वो समझ में आ जाए डिजिटलाइजेशन का कितना उपयोग है। हम आभार व्यक्त करते हैं निश्चित रूप में। ये जो आंकड़े आपने इकट्ठे किए, इतनी मेहनत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। Thank you so much, sir, for your valuable time and presence. The presentation was very eye-opening. The data you shared was very eye-opening. We are honored to have you, sir. Now, moving on with the further proceedings, I would like to invite our chairperson for the first technical session, Professor Mrs. Pratibha Makhija, to carry out the further proceedings. Ma'am. हो गया इस बैठक में चला जाना। बोलो। Hello, good morning, dear all. Himanshi, I think first we have to invite Madam Ritu Bajaj ji. She will be giving her keynote address. Then we shall move to our technical session. This was Okay, our program, and you can invite and introduce Madam Ritu Bajaj ji. Okay, ma'am, sure.
Okay, moving on with the further proceedings, I would like to give a brief introduction to Dr. Ritu Bajaj. She is from Department of Management, BPS Mahila Vishwavidyalaya, Kanpur Kala. Dr. Ritu Bajaj is a Master's in Business Administration and Doctor of Philosophy from Kurukshetra University, Kurukshetra. Her area of specialization is marketing and retail. She has published more than a dozen research papers in international and national journals of repute and has presented various papers in international and national seminars. She has also authored books in different areas of management. She is a member of various statutory bodies like the Court, Executive Council, Academic Council, and Board of Studies of different universities. She has proven her administrative acumen as a registrar of the first Skill University of India, Shri Vishwakarma Skill University, Haryana, and Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Kanpur, Haryana. Now I would like to invite Dr. Ritu Bajaj to share her views with the viewers. Thank you so much. First of all, a big congratulations to the entire team of MM College, Dr. Gurcharan Das, Dr. Vikesh, and Anjali ji. You're Miss Anjali. What's your name, dear? Himanshi. I'm sorry, Himanshi. Himanshi, a beautiful face, a very attractive and a beautiful face, and she speaks very clarity in her voice. Thank you, ma'am. Thank you for organizing this seminar and inviting me specifically for this program, and finding me suitable for the program. This online seminar on COVID-19 and digitalization is actually the need of an hour, and it has, since 2 years, we have been believing in this need, digitalization. We believe that man is a social animal. हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, अलग अलग नहीं रह सकते. But COVID-19 ने हमें सिखाया कि हम एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं. और वो कैसे रह सकते हैं? That is, technology is the best when it brings people together. Technology is best when it brings people together. And who gave this statement? Matt Mullerberg. जिसने WordPress बनाया था, उसने imagine भी नहीं किया था कि वो WordPress इतना famous हो जाएगा COVID-19 के time पे. And technology has actually brought us together through this COVID-19 platform. And अभी प्रोफेसर विक्रम सिंह ने जो इतना सुंदर डेटा दिया कि मेरे लिए बड़ा आसान हो गया, मुझे डेटा पेश करने की अब जरूरत नहीं है. खूब सारा डेटा दे दिया कि कौन सा स्टेट अच्छा कर रहा है डिजिटलाइजेशन में, किस तरह से COVID-19 में डेटा कंजम्पशन इंक्रीज हुआ. तो इट इज लाइक डिजिटाइजेशन हैज व्हेन, जब टेक्नोलॉजी हम सबको इकट्ठा सोशल एनिमल की तरह इकट्ठा कर देती है. दिस प्लेटफॉर्म जहां पर हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे पर देख पा रहे, वी कैन फील व्हाट वी आर एक्सप्रेसिंग. दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन इन COVID-19. सो COVID-19 जब आया, एक महामारी के फॉर्म में आया हमारे पास. हमें लगा ये क्या आ गया है, जहां हमें रोजमर्रा सुबह उठकर ऑफिस जाने की चिंता होती थी, रोज उठकर तैयार होना, जाना, गाड़ी निकालना, जैसे भी जाना, घर पे सेट करना, ऑफिस जाके शाम को वापस आना, एक दिनचर्या हमारी तय थी. पर जब COVID-19 महामारी डिक्लेयर हुई, कुछ कंट्रीज को ऐसा लगा क्यों ना COVID-19 को हम एक बिजनेस फॉर्म में यूज करें. आई एम नॉट नेमिंग दोस कंट्रीज, ऑल ऑफ अस नो देम नाउ. जब महामारी के फॉर्म में, बिजनेस की फॉर्म में यूज करे, तो उन्होंने कैसे बिजनेस की फॉर्म में इसको यूज किया, किस तरह से, मतलब COVID-19 को बिजनेस प्लेटफॉर्म की तरह इमेजिन करना, ये बहुत बड़ी बात थी. एंड कंट्रीज हैव डन दैट. चाइना इज नो नेम इनटू इट. बट किस तरह से उसको, मतलब महामारी को बिजनेस फॉर्म में यूज करना, क्यों? क्योंकि पहले लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ी थी. अभी भी यूक्रेन वॉर, जो हमारी यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, अस्त्रों शस्त्रों की जरूरत पड़ रही है. बट दिस कंट्री थॉट कि लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है. लड़ने के लिए किसकी जरूरत है? इंसान को. इंसान से लड़ाने के लिए किसकी जरूरत है? उसकी सांसों से, उसके सांसों को लड़ाओ. Make him breathe and that disease should spread as a virus. That's the kind of ideology that country has. Why don't we spread a disease which spreads in the air and people will die? When people will die and we have a solution for that, will we be able to become the number one most powerful country? That is a business intention behind COVID-19 spread. I'm sorry, don't take me wrong. It is just to, but a country like India, हमारा देश जो सोने की चिड़िया था, a country like India and lot many other countries, जहां पर लोग मर रहे थे COVID-19 की वजह से. हमारे अपने फैमिलीज में हमने बहुत लोगों को लूज किया. हम लोग डिप्रेशन में आ गए. कल से नहीं जाना, कल से घर पे क्या होगा हमारा. जहां
जहां के प्रधानमंत्री के पास एकदम से समस्या आ जाए कि 132 करोड़ संख्या का क्या होगा, 132 करोड़ संख्या मेरी जनसंख्या कहाँ जाएगी, और जहां पर 40 to 42% एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, 30% हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, 32% हमारी सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, क्या होगा हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड इन इकोनॉमीज का, क्या होगा? अगर हम एक देश के प्रधानमंत्री की तरह सोचें, दिस डिजिटलाइजेशन became a boom in the country, पूरे देश को, पूरे कंट्री को संभालने का एक काम डिजिटलाइजेशन ने किया। अगर डिजिटलाइजेशन नहीं होता तो शायद आज हम सब ऐसे नहीं मिल रहे होते, और इकोनॉमी की क्या हाल होती है हम इमेजिन कर सकते हैं। किस तरह से किया? एग्रीकल्चर उन्होंने क्या किया स्ट्रेटेजी वाइज, अगर हम कंट्री का देखें, प्लानिंग देखें, उन्होंने क्योंकि एग्रीकल्चर को कैसे बूम करने दिया, ऑनलाइन एग्रीकल्चर तो मूव किया ही किया, बट रेडी वाले सब हमारे पास घर पे आते थे, देवर ओनली फ्यू पीपल, शॉपकीपर्स अपनी रोजगार चला रहे थे जो डेली शॉपकीपर्स हैं, और ऑनलाइन साथ साथ में बढ़ रहा था। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दैट वाज हिट ड्यूरिंग दैट टाइम, बट सर्विस सेक्टर दैट इज 32% ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड वर्ल्ड वाइड went on digitalization, which is a very very big sector of the economy, earning a huge amount of money for the economy. So जो गुरु मंत्र बन गया कि रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ घर में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज करना एसेंशियल है। धीरे धीरे हम किस टेक्नोलॉजी की तरफ प्रोन होने लगे। पहले हमें नहीं पता था कि हम एजुकेशन सेक्टर के जिसको बिलोंग करते हैं किस तरह से यूज करें इंटरनेट का। मतलब इंटरनेट यूज करते थे फेसबुक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, व्हाट्सएप के लिए, पीपीटीज प्रेजेंटेशंस करते थे, बट जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू भी यूज हो सकता है, और क्या और कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है। आई रिमेम्बर 20 मार्च को जब 19 मार्च को जब डिक्लेयर हुआ कि कल से यूनिवर्सिटी बंद होगी, जैसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऊपर से आई, साथ ही साथ एक और लेटर आया, डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करें। डीएचई से लेटर आया, डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करें, डिजिटलाइजेशन। तब वीसी साहब ने तुरंत बैठक बुलाई, मैं स्किल यूनिवर्सिटी में थी, तुरंत बैठक बुलाई कि हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करना और कल से यूनिवर्सिटी बंद करनी है। डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करना है, जहां हमारी कोर्ट की मीटिंग, क्योंकि मार्च था तो कोर्ट की मीटिंग थी, हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग थी, हमारी एफसी की कमेटी की मीटिंग थी। ये बहुत तीनों इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है कि नेक्स्ट ईयर का बजट आपको तभी मिलेगा जब आपकी ये एफसी की मीटिंग होगी, कोर्ट की मीटिंग होगी और ईसी की मीटिंग होगी। मतलब वी वर एट अ फ्लक्स कि सर हमारी तीनों मीटिंग्स पेंडिंग है, हमारे को तो नेक्स्ट ईयर बजट ही नहीं मिलेगा, नई यूनिवर्सिटी हम क्या करें। एंड व्हेन दिस डिजिटलाइजेशन केम, एक मतलब भगवान रूपी डिजिटलाइजेशन मैं बोलूंगी हमारे सामने जब आया, हमने तीनों मीटिंग्स ऑनलाइन करी। एंड तब सर ने बोला कि ऑनलाइन मीटिंग्स तो चलो कर लेंगे बिकॉज गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है हर चीज के लिए, हमें क्लासेस कैसे करेंगे और एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करेंगे, रिजल्ट हमारा रुक जाएगा तो सबके लिए प्रॉब्लम आई होगी। जैसे मुझे प्रॉब्लम, सबको ये, आई थिंक प्रिंसिपल साहब, गुरुचरण सर के पास भी ये प्रॉब्लम, कैसे करें। उस वक्त डिजिटलाइजेशन में हम लोगों ने पैकेजेस खरीदे, जूम पे 40 मिनट्स पैकेज लिया या गूगल मीट पे पैकेज लिया, अलग अलग प्लेटफॉर्म सर्च किए, धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया उस डायनेमिक वर्ल्ड की तरफ, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म किया। पीपीटीज जो बनाते थे उसको कैसे शेयर करना है नहीं आता था, धीरे धीरे उसको अडॉप्ट किया। एंड दिस डिजिटलाइजेशन हैज टेकन अस अहेड। जैसे सर ने भी बात की कि कितने फायदे हैं उसके, कितना हम कार्बन फुटप्रिंट को सेव कर रहे हैं, इकोनॉमी को सेव कर रहे हैं, हम ग्लेशियर्स देख पा रहे थे, हम क्लीन एनवायरनमेंट हो गया। एंड डिजिटलाइजेशन ने चेंज, एक सोशल चेंज जो हमारे लिए प्रॉब्लम थी वो एक हमारे लिए एक सोशल चेंज की फॉर्म में पॉजिटिविटी लेके आई। जो कंट्री के लिए प्रॉब्लम थी दैट इज हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयबिलिटी, तीनों के तीनों को हमने डिजिटलाइजेशन की फॉर्म में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लेके सभी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वो मैसेज ट्रांसफॉर्म करके डिजिटलाइजेशन एक्टेड एज अ बिग फादर कंट्रोलिंग ऑल ऑफ देम एंड ब्रिंगिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर। बिजनेस की बात करें तो वी वर डूइंग ऑल द बिजनेसेस ऑनलाइन। शुरू में लगा, सबको धक्का लगा, कैसे अडॉप्ट करेंगे बिकॉज चेंज एकदम एक्सेप्टेबल नहीं होता, बट धीरे धीरे लगा नहीं, इट कैन बी डन बेटर। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सब बंद हो गए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज सब बंद हो गई, बट सब कुछ चला, स्कूल्स भी चले, कॉलेजेस भी चले, यूनिवर्सिटीज भी चली, सीबीएसई ने एग्जामिनेशंस भी बोर्ड्स के ऑनलाइन लिए, एवरीथिंग वेंट सो स्मूथ। धक्का लगा बट धीरे धीरे एडजस्ट करते करते हम लोग आगे बढ़ते गए। हेल्थ केयर, डॉक्टर्स वर अवेलेबल ऑनलाइन, दो हेल्थ केयर वर्कर्स वर देयर ऑन द रोड, दे वर 24/7 वर्किंग, बट बहुत सारी कंसल्टेशन ऑनलाइन शुरू हो गई। मेजॉरिटी ऑफ द कंसल्टेशंस वेंट ऑनलाइन। यस, जैसे विक्रम सर ने भी बोला कि हम लोग कंसल्टेशंस बाहर, इंटरनेशनल कंसल्टेशंस लेनी शुरू हो गए, देश आपस में सब डिजिटलाइज मोड में इकट्ठे हो गए। This was a big change. This was a social change that went. The man went digitalized, went interacted digitalized. WhatsApp became a very important tool. All these became very important tools. Byju's,
दिन मतलब कुछ दो तीन महीनों में ही इट बिकम मल्टी बिलियनियर कंपनी. स्टार्टेड विद द कंसेप्ट प्राइवेट, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ द इकोनॉमी रुकी नहीं, थमी नहीं, बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई. दैट वाज डिजिटलाइजेशन. दैट इज व्हाट डिजिटलाइजेशन इज. तो हम अगर मैं महाभारत टाइम के कुछ रिलेट करना चाहूंगी. हम उसी भारतवर्ष के वासी हैं जहां पर महाभारत हुई. 5000 वर्ष पहले महाभारत हुई. युद्ध के दौरान संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि के बल पर धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में कहा, धृतराष्ट्र को सब कुछ दिखाया जो वो देख सकता था. तो दिव्य दृष्टि जो संजय को मिली थी महाभारत में, दिव्य दृष्टि हमें एक्चुअली डिजिटलाइजेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू मिली. तो वो दिव्य दृष्टि हम सबके पास एक सिर्फ वाईफाई का पासवर्ड डालने से हम सबके पास आ जाती. जैसे हम वाईफाई का पासवर्ड डालते, यस इट्स वर्किंग. That's the दिव्य दृष्टि जो संजय के पास है, अब हम सबके पास है. Look at the change which has taken place during COVID. Because we should thank if COVID-19 thank तो नहीं कहेंगे, पर COVID-19 नहीं होता तो शायद हम डिजिटलाइजेशन को इतनी स्मार्टली और स्विफ्टली अडॉप्ट नहीं करते. हम और समय लगाते हैं उसको अडॉप्ट करने में, जैसे सर ने शेयर भी किया डेटा. So one Wi-Fi password, internet connection, we are there with the connecting with the world altogether. Digital payments जो हम नहीं सोच सकते, हमें डर लगता था, अरे कैश में बिलीव करते थे, कैश की वजह से फेक करेंसी बहुत मूव हो रही थी. तो अब डिजिटल पेमेंट्स जो हमें बहुत डर लगता था यूज करने में, अब हम उसके आदी बन गए. अब हमें कैश रखना डर लगता है, कैश रखेंगे तो शायद कोई पिक पॉकेटिंग ना हो जाए. वी बिकेम सो स्विफ्ट एंड दिस स्विफ्ट चेंजेस हैव मूव्ड ग्रेजुअली विद ऑल ऑफ अस. तो एक मोबाइल फोन जहां हमें बहुत सारे गैजेट्स की जरूरत पड़ती है, अब एक मोबाइल फोन सब कुछ बन गया. मोबाइल फोन बिकेम ऑल इन वन गैजेट फॉर ऑल ऑफ अस, जहां पर हम सब कुछ क्लासेस भी उससे ले रहे हैं, बिजनेस भी उससे परफॉर्म कर रहे हैं, सारा डेटा भी उस पर रख रहे हैं. इट बिकेम एन ऑल इन वन गैजेट. सो दिस इज अ चेंज इन डिजिटलाइजेशन. यूपीआई, भारत पे, रूपे, पेटीएम हर दुकानदार ने, छोटे छोटे दुकानदार, रिटेलर ने भी पेटीएम के थ्रू पेमेंट लेनी शुरू करी. दे लर्नड, चेंजेस हैव मेड अस ऑल लर्न. देन बहुत स्ट्रॉन्ग एक चेंज हुआ, दैट इज जब ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ तो फास्टैग, दैट इज कॉल्ड एज ETC, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, जिससे कि डिजीज स्प्रेड ना हो. हाउ वी कैन प्रोटेक्ट ईच अदर. फिर ग्रोइंग इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग पे हम धीरे धीरे मूव कर गए. उसका नुकसान भी है, बहुत खर्चा हो जाता है, बट वी आर सेविंग आवर टाइम बाय सिटिंग बैक एट होम एंड बाइंग. ग्रोसरी ऑनलाइन, फार्मेसी ऑनलाइन, वेजिटेबल्स ऑनलाइन. तो ऑनलाइन की तरफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुआ. एंड अल्टीमेटली वी बिलोंग टू अ वर्ल्ड वेयर वी आर डिजिटली कनेक्टेड टू ईच अदर. हम सब एक दूसरे के साथ हैं. जोमैटो खाना ऑनलाइन आना शुरू हो गया, जोमैटो, स्विगी, ऑल एवरीथिंग बिकेम ऑनलाइन. And we are enjoying it, at least saving our time by not moving on the roads, wasting our time. हम उस time save को किस तरह से use करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है. Digital world is all around us. लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी. भारत में हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि सीखो, बदलाव से कुछ सीखो और उसी को अपनाने. कोरोना ने, इसी महामारी में हम भारतीयों को हारना नहीं बल्कि उस हार से आगे बढ़ना सिखाया. एंड हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे पूरे स्ट्रक्चर ने एक दूसरे का साथ दिया, हमने एक दूसरे का साथ दिया. एंड अल्टीमेटली वी हैव कम आउट एज अ पार्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड वेयर वी आर शेयरिंग आवर थॉट्स थ्रू दिस डिजिटल वर्ल्ड. थैंक यू. Thank you so much, ma'am, for your valuable time and presence. The way you beautifully represented the various aspects was very mesmerizing. Thank you so much, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद रितु, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की. और आप तो महाविद्यालय में आ चुके हैं, और एक बार फिर जब ये सब महामारियों की बंदिशों से हम दूर होंगे तो निश्चित रूप में आप यहाँ आएंगे. अब डॉक्टर प्रतिभा मुखीजा मैडम, प्लीज. थैंक यू सर. जस्ट एक चीज ऐड करना चाहूंगी. आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी. आई एम नॉट प्रोफेसर. हेलो.